कॉलेज में फेक है। मैं खुद गया था, परसों हम वहाँ गए थे चंडीगढ़ पंचकुला, वहाँ चीफ से भी मिलके मैं आया हूँ और वीरेंद्र जी से भी मिलके आया हूँ। उसको पेपर हमने दिए, आपकी सरकार के द्वारा वहाँ पेपर कोई नहीं पहुंचा। मैं खुद दे के आया हूँ, रिपोर्ट तैयार करके 70% के साइन करके मैं खुद दे के आया हूँ। तब तक वहां पर हमने मीटिंग की थी और वो कहते हैं हमारे पास आपका कोई 70% का कोई लेटर रूटर कुछ नहीं है, ना 70% के हमारे पास पेपर है। मैं फोटोस्टेट कॉपी दे के आया हूँ। हाँ नहीं, मैं मान लेता हूँ कि वो हमारे वाली को रिपोर्ट पहुंच गई। वो अभी जस्ट आपके लेटेस्ट आपने रिपोर्ट मांगी उसको मेरे वाली वहां पे उन्होंने दिखा दी। आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये तो देखा जाए ना कि अब तक क्या हुआ है। पब्लिक में बता दो क्या चार बात है, कोई फोन है भाई साहब, कोई इनकी वीडियो नहीं बनाया। जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 2014 ਦਾ 2024 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, 15 ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 4 ਸਵੇਰ ਘੁਮਾ ਲਓ ਵੀ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 38 ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਫ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 500 ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ और सरकार का घराव भी करांगे। ये ऐसी साडा फैसला है। हमारा मांग यही है कि ये एक 2014 में मंजूर हुआ था जी खरीफ चैनल 2 और 2019 में इसका पैसा सैंक्शन हुआ था। बिकतानिया खरीफ चैनल का जो पैसा था 54 करोड़ 26 लाख था। बमूर सलारपुर माइनर का जो पैसा था वो 12 करोड़ 26 लाख था। ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ही पास हुआ था जी और हम 2009 से इस प्रयास में लगे हुए थे जी और 15 साल लगातार इस प्रयास में लगे होने के बाद पैसा तो पास हो गया जी, लेकिन अभी तक ये धरातल पर कोई काम नहीं हुआ जी। हम 9 साल तक इंतज़ार करते रहे कि हम यहाँ के जितने लोकल नेता थे या सरकार के अंदर मौजूदा बंदे थे उनसे मुलाकात करते रहे कि हमारा ये जो 2 खरीफ चैनल इनको चालू किया जाए, इन्हें निर्माण किया जाए। और हम लगातार 10 साल तक, चलो पहले तो हम 15 साल इसलिए कह रहे हैं, 5 साल तो पिछली सरकार थी तब भी हमारा नहीं हुआ, 15 साल इसलिए कह रहे हैं। 10 साल से तो लगातार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये पैसा पास किया था जी, तो उनके द्वारा अभी तक 9 साल हो चुके हैं जी, 10वां साल पूरा होने वाला, अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया गया। हमेशा हमारे को भला फुसला कर कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जी और 2 प्लान वोट लेके उसके बाद ही हमें ये ठेंगा दिखा रहे हैं जी। 15 साल से 15 गांव के किसान परेशान हो रहे हैं, फिर भी सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही। बिल्कुल जी, यहाँ हम ये कह रहे हैं आप किसी भी द्वारा आप यहाँ का पता कर लो, जो भी यहाँ पर सरकारी लैब है उसके अंदर हम पानी टेस्ट करवाते हैं और वहाँ के सरकारी लैब वाले ये कहते हैं ये पानी यहाँ पर पीते कैसे हो, ऐसा गंदा पानी है यहाँ पर, हम पीना छोड़ हम अब कपड़े भी नहीं धो पाते जी, फिर भी हम ऐसी बदहाली में जी रहे हैं। हम ये ओटोवीर से मांग रहे हैं जी। और आपको ज्ञात होगा पिछले साल फ्लड आया था, उसके अंदर हज़ारों गांव बह गए थे, हज़ारों मवेशी यहाँ बहते आपने देखे होंगे, आप मीडिया द्वारा भी उसको कवरेज किया गया था। ट्रैक्टर ट्रालियाँ कितना बुरा हाल हुआ था। हम ये जायज़ मांग रहे हैं 2 खरीफ चैनल हमारे को निकाल दिए जाए। एक तो पीछे से जो बाढ़ आती है वो बच जाएगा क्योंकि आगे पानी को रास्ता मिल जाएगा तो पीछे ओवरफ्लो नहीं होगा, और दूसरा हम ये 15 गाँव हैं, जो 15 गाँव खेती के लायक हो जाएंगे, हमारे यहाँ फसलें हो जाएंगी, फसलें होंगी तो हमारी नस्लें हो जाएंगी। हम तो यहाँ पर ज़मीन बंजर हो रही है जी, हम तो यहाँ को प्लान करने के लिए तैयार हैं जी। पिछले दिनों चंडीगढ़ में विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और आपकी मांगे भी उनके सामने रखी थी, उसके बाद गोविंद कांडा भी आपसे मिलने आए थे। सर सबसे पहली बात तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारा सबसे पहला यही एक ऐलान था कि यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका कारण यह 15 साल से हम राजनीतिक दलों के जितने घर दफ्तर है चक्कर काट के हमारी तो जुतियाँ घिस गई, जुतियाँ के बाद हमारे पैर भी घिस गए जी, इसलिए हमने कहा 15 साल हमने चक्कर काटे, आपसे कुछ नहीं हो, आप हमारे बीच में ना हो। ठीक है जी, अपने हर अपनी तरफ से हर बंदा अपना इसमें श्रेय लेना चाहता है। इलेक्शन आ रहा है, वो सोच रहा है कि श्रेय मुझे मिल जाए, लेकिन श्रेय लेने तक सीमित है, सीएम साहब तक अभी तक कोई बात नहीं हुई। हमने यही कहा था, गोविंद कांडा जी आए थे जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए हो, चलो कुछ लेके आए होगे तो हमें दिखाओ। कहते 30 लाख का वो मान लिया गया सीएम साहब ने। हमने यही कहा था जी 30 लाख मान लिया गया तो कोई लेटर दिखा दो, कोई उसका वाइट दिखा दो, रिटर्न में वाइट दिखा दो, कोई बात नहीं, झूठी बनवा के ले आओ, कोई बात नहीं, हमें दिखा दो भी, हम मान लें, कोई बात नहीं, हम तो बड़े बड़े किसान हैं, हमें कौन सा इधर मीडिया बारे पता, लेकिन वो कुछ नहीं दे पाए जी अभी तक। ऐसे ही जी तो हमारे साथ ऐसे ही चीटिंग हो रही है जी। सुनीता दुग्गल जी से थे, उस समय भी उन्होंने कहा था मुझे वोटें डाल दो, मैं 6 महीने के अंदर आपको नहरें ला दूंगा। सुनीता दुग्गल जी ने नहरें तो क्या लानी, सुनीता दुग्गल जी नहीं हमारे दिखाई दीजिए अभी तक। 1-2 बार हम कोठी पे गए भी हैं, वो पिछले रास्ते से निकल जाती थी जी। 15 गांव है जी, 15 गांव के बुजुर्ग लोग, हमें तो हमारी सारी उम्र होगी जी इनके चक्कर काट के जी। अब हम उस भगवान के आगे दुआ करते हैं, हे परमात्मा उस सीएम साहब के मन में रहम डाल दे और ये पानी दे दे जी, हम भी बच जाएंगे, हमारे बच्चे भी बच जाएँ जी। हम तो बस आखिरी हथियार है जी, ज़मीन बंजर हो जाएगी और 0 लेवल पे। वैसे भी याद रहे कि डेड जोन में, हम सरसा कह रही है डेड जोन में, ना नया कनेक्शन मिलता, ना इसलिए नहीं मिलता नीचे पानी नहीं है, वो जो यहाँ का वाटर लेवल बहुत गहरा है जी। संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा।
अभी तक तो हम बड़े प्रेम प्यार से रिक्वेस्टें कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने का कारण सीधा सा ये, जो मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं बीजेपी का बंदा नहीं, किसी का बंदा नहीं, मैं एक फ्रीडम हूँ, आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ मौके की सरकार है, मौके की सरकार से मांगना चाहिए, और मांग रहे हैं बड़े प्रेम प्यार से, क्योंकि सरकार जो माँ होती है, माँ से हम मांग रहे हैं। और माँ को हम बड़ा बुला कह सकते हैं। जब याद हो, आप ये बच्चे हो, जब हमें भूख लगती है, माँ को हम बड़ा बुरा भी बोलते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, माँ बाप को भी लड़ लेते हैं, लेकिन बाद में हमें इकट्ठा तो होना पड़ता है ना। उस तरह हमारे कई अच्छे यहाँ पर वक्ता हैं, कामरेड साहब हैं और कुछ है, उनके द्वारा कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो मरते हुए करते हैं। जब हमें कोई चूटी कटेगा या चोट लगेगी, हाय की आवाज़ निकलेगी, ये हाय का दर्द है सीने में, जो वो दर्द निकलता है। ऐसी स्थिति में हम है जी। सर, आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। ट्रैक्टर मार्च ये बड़े शांतिपूर्वक बैठे थे। ये हम सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि किसान, हमें भी ट्रैक्टर मार्च निकालना आता है। आज तक हम शांतिपूर्वक, आज हमारा ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्वक है। तो ऐसे है जी, हमें पानी ना मिले, ट्रैक्टर छोड़ के हमारे तो गुदड़े बिक जाएंगे जी। ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है। हमारे आने वाले समय में तो हमारे पास ट्रैक्टर छोड़ के हमारे को साइकिल नहीं रहेगी, साइकिल के लायक भी नहीं रहेंगे जी हम तो। ट्रैक्टर मार्च ने दिखाया है भी, हमारी एकता को दिखाया गया कि हम एक है। लोगों को ये गलतफहमी थी भी ये एक नहीं है, 15 गांव है, जितने बंदों को इकट्ठा करना बड़ा औखा, लेकिन आपने आप देख लिया है।